So, hello dear aspirants, welcome to CS Vision. So, this is Chandan Kumar, Assistant Professor of Computer Science, as well founder of CS Vision. So, aspirants, in this session, we are going to see the concept based on the number system conversation. Why this session is more important? Because whenever you are going to attend the UGC NET exam as well the various state exam, and also whenever you are going to attend any of the competitive exam based on the computer science, so each and every exam, this is confirmed topics where you are going to get 2 to 3 questions. So here most probably we are going to focus the concept based on the UGC NET as well the SET exam. Okay, so very soon you are going to attend your UGC NET exam, so this session is very much going to helpful for your upcoming exam. So let's see. If you miss the basic concept of number system, so please go and watch the previous video where we have just clear all those concepts based on the number system. Okay, so let's start. So in conversation, exactly what we are going to see. So in the conversation, mostly we are going to see how we are going to convert. Suppose we have the binary number system, so how we are going to convert the binary number system with the various number system? If we talk about that octal number system, if we talk about the decimal number system, if we talk about the hexadecimal number system. So suppose we have the data and the data form of the binary number. So maybe you are going to get the question, convert the binary number to octal number system, convert the binary to decimal number system, convert the binary to hexadecimal number system. So, okay, so in the concept, we are going to learn each and every concept. So at the last, there is no any confusion. Okay. Also, somewhere, also at the last, we are going to solve 2 to 3 questions, and those questions already asked in the UGC NET exam. Okay. So after learning those concepts, easily we are able to solve each and every question. Okay, to see here also, somewhere you are getting the question, given the data in the form of the octal number system and you are going to convert into the binary number system, decimal, hexadecimal. Okay, so in the session we are going to see each and every type of problems. Okay, first what going to be here? Suppose we have the binary number system. Suppose we have the binary number system. Suppose let's see here, 0 1 1 1 0 0 1. This is the binary number system. Now they are going to ask what is the decimal number system. So their given data is binary form and they are asking what is the answer based on the decimal number system. Because what is the base of the binary, octal, decimal and hexadecimal, those concepts we already discussed in the previous videos. If you miss, go and watch again. After that, start the concept as well, start the learning of this session. Okay, so here is the question. We have a data based on the binary number system. Now we are going to convert binary to decimal. So how we are going to do? Because here we are going to learn what we are going to know. Here we are going to learn the concept based on the manual method. Because here we are going to see the two method. One is manual method, one is the shortcut method. So in the exam, 100% you are going to apply the shortcut method. Okay, so first see here, just forget about this data. So firstly we are going to start from the decimal to binary, because this is the best way to start the conversation concept. Okay, to see here just come on the front of the, suppose there is a data, what we can say, suppose that there is data, before that first remove the, suppose that here is 29 and this is the form of the decimal. Why decimal? Because the combination of 0 to 9, so you're able to see 2 and 9. Okay, and they asking what is the form of the binary number system. So here we are going to get the data. So first we are going to see the data based on the method one, it means the manual method. So how we are going to apply? Because for whenever we are getting the question decimal and when we're going to find the binary, so here we are going to use the division method. Apply division. Somewhere you are getting the question, and this is the important question. Key
हमारे पास जो डेसिमल डेटा होते हैं उसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो what methods we are going to use. So here we are going to use the decimal methods. Okay, somewhere you are getting the question, we have the data form of the decimal. So when we are going to convert, we have the data based on the binary. When we are going to convert in the decimal, so what method we are going to use? So on that way we are going to use the multiplication method. Okay, so see here, what is the first method? Manual method we can say. इसको हम बोलेंगे मैनुअल मेथड. मैनुअल मेथड. सो सी मैनुअल मेथड क्या होता है आपका? वेर यू आर गोइंग टू यूज, बोल सकते हो कि बच्चों वाली मेथड. ठीक है, तो हमारे पास डेटा क्या है 29. सो एज वी सी हियर वी आर गोइंग टू यूज द व्हाट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर? डिवीजन मेथड. सो डिवीजन में क्या होता है? बिकॉज बाइनरी द बेस ऑफ द टू, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय द टू. एंड व्हाट गोइंग टू स्टोर हियर? सी फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय द टू. सो टू को अगर आप 29 से डिवाइड करोगे तो लेट्स सी वी आर एबल टू एग्जैक्टली डिवाइड और नॉट. नो, बिकॉज दो के टेबल में जाओगे 29 इज नॉट एबल. वी आर गेटिंग नियर अबाउट 28. सो हाउ मच टाइम? तो 2 1 2 एंड 2 4 जा. ओके, सो वी आर गेटिंग दिस स्टेट. एंड सी हियर, जैसे हमने दो को 29 से भाग दिया, वी आर गेटिंग 14. बट व्हाट अबाउट द रिमाइंडर? 1. सो रिमाइंडर आर गोइंग टू स्टोर हियर. गॉट इट? अगेन वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय द 2. 2 7 जा 14. बट आफ्टर द रिमाइंडर व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? 0. जब वो डेटा पूरी तरह से कट जाए, इट मीन्स रिमाइंडर वी आर गेटिंग 0. अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट टिल इट, जब तक आपका ये कट के पूरे 0 या 1 ना आ जाए. दो के करोगे तो 2 3 जा 6, बिकॉज 7 तो है नहीं टेबल में, तो 2 3 जा 6. तो यहाँ पे देखो 2 3 जा 6 तो हो गया, लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा. फिर दो से करोगे यहाँ पे तो 2 1 जा 2, लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा? 1. सो देखो, अब हम देख रहे हो कि ये जो डेटा है इट विल लेसर देन 2, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे. अब इसका बाइनरी क्या होगा? नाउ वी आर गोइंग टू गेट. तो इसको बाइनरी फाइंड करने के लिए वी आर गेटिंग द डेटा फ्रॉम अप टू बॉटम टू टॉप. सो व्हाट इज द फर्स्ट डेटा? 1 1. ऑल जितने सारे 0 1 के कॉम्बिनेशन है वी आर गोइंग टू पिक हियर. तो नीचे से उठाएंगे हम डेटा. 1 हो गया, देन यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 1 है, 0 एंड 1. सो एग्जैक्टली वी आर गेटिंग 1 1 1 0 and 1. This is the binary form of what guys? 29 डेटा जो डेसिमल आपका दिया हुआ था. तो ये आपका है क्या? मेथड 1. दिस इज द मैनुअल मेथड. सी सेम डेटा को हम अप्लाई क्या करेंगे यहाँ पे? मेथड नंबर 2. मेथड नंबर 2 देखो, दिस द वेरी सिंपल. सो वी हैव द डेटा लाइक 29 जो कि आपके पास डेसिमल में दिया हुआ है, इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में. तो देखो मेथड 2 क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैजिक मेथड. तो मैजिक मेथड हम अप्लाई कहाँ कब करेंगे? लेट्स सी हियर. बिफोर दैट सी फॉर चेंज द पेन कलर, देन यू आर गोइंग टू गेट हियर. ओके, तो देखो अब ये जो 29 डेटा दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू सी एज वेल गोइंग टू इमेजिन कि दो के हम जो आप मल्टीपल में जाते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64. सो वी आर गोइंग टू इवेलुएट लाइक कि क्या 2 के जो मल्टीपल में क्या 29 आ रहा है कि नहीं आ रहा. If we are able to get the data, then we are going to stop on that way. Otherwise somewhere ये दो के टेबल में नहीं आएगा, लेकिन we are going to get the near about data. हम 29 से आगे की ओर नहीं जाएंगे. उससे या तो 29 एग्जैक्ट आपके 2 के आपके मल्टीपल में होना चाहिए, या उससे कम डेटा को हम पिक करते हैं. सो व्हाट गोइंग टू बी हियर? तो अगर दो के टेबल में जाओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32. अब देखो 32 क्या है? 29 से ज्यादा है, तो उसको हम छोड़ देंगे. उससे पीछे आएंगे तो 16 आएगा. अब 16 तो आ गया हमारे पास. अब देखो 16 आ गया, हमारे पास डेटा क्या है? 29. सो अब भी हम 16 में कितना ऐड करेंगे? सो वी आर गेटिंग द 29. अब देखो यहाँ पे जो भी आप डेटा यहाँ पे पिक करोगे, सारे के सारे डेटा आपके 2 के मल्टीपल में होने चाहिए. गॉट इट? तो देखो यहाँ पे 16 है, 29 है. सो व्हाट गोइंग टू बी हियर? 29 माइनस 16. सी हियर 13 एंड 1. 13 रिमेनिंग वी आर गोइंग टू गेट. अभी हमें 13 चाहिए, तो 13 को अगर आप 2 के टेबल में कन्वर्ट करोगे, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? सो हियर वी आर गेटिंग द डेटा लाइक दैट. अगर आप देखोगे तो 8 आएगा, देन 8 5 13. तो 5 भी देखो 2 के मल्टीपल में नहीं है, तो 5 को कैसे करोगे? तो देखो 5 अगर आपके पहले तो हमको 8 चाहिए, 8 के बाद हमें चाहिए 5, तो 5 में लेके हम 4 ले लिए. अब देखो ये 16 8 24, सॉरी ये रहा टू सी. अब एग्जैक्टली देन 28. अब हमारे पास और एक और डेटा आ रहा है एक. तो ये डेटा को अगर ऐड करते हो, सो वी आर गेटिंग
29। अब देखो हमें इसको कैसे एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन द इजी वे। तो देखो वन का मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास सपोज द सेम डेटा, ये आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, वन वन, यहाँ पे वन वन है, वन है, जीरो और वन है, ये आपके पास बाइनरी है जो कि 29 का है, एज वी ऑलरेडी नो 29 डेसिमल नंबर। अगर हम बोले कि इस बाइनरी को आपको शॉर्टकट मेथड से 29 बनाना है, सो हाउ वी आर गोइंग टू गेट, तो यहाँ पे वन लिखेंगे, यहाँ पे वन लिखेंगे, यहाँ पे वन लिखेंगे, जीरो एज वेल द वन। So what exactly going to get here? See here on the same data we are going to write here. वन है, वन है, वन है, जीरो है और वन है। तो देखो जब हमारे पास बाइनरी नंबर हो और बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो हियर वी आर गोइंग टू यूज द मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि बाइनरी है, बेस इज बाइनरी ऑफ बेस इज टू, तो यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, टू के पावर स्टार्ट करते हैं जीरो से, और नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय द गिवन डेटा। तो वन गुना टू का पावर जीरो, अगेन वी आर गोइंग टू ऐड, उसके नेक्स्ट वाला डेटा क्या है, जीरो है, जीरो गुना टू का पावर जीरो सब क्या होगा, यहाँ पे वन होगा, अगेन प्लस वन गुना टू के पावर टू, वन से टू होगा, फिर प्लस वन गुना टू के पावर थ्री, फिर प्लस वन गुना टू के पावर फोर। व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड द डेटा, तो देखो एनी पावर जीरो वी आर गेटिंग द वन प्लस, अब देखो यहाँ पे जीरो को अगर कितना भी बड़ा पावर और कितना भी नंबर उसको गुना करो एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू गेट द जीरो। सो व्हाट हियर वी आर गोइंग टू गेट द जीरो, देन प्लस टू का पावर टू, फोर, फोर गुना वन फोर, देन प्लस दो दूना चार दूनी आठ गुना वन आठ, देन दो दूना चार दूनी सोलह। देखो सोलह आठ चार, जीरो को तो नेगलेक्ट कर देंगे वन, तो एग्जैक्ट डेटा वी आर गोइंग टू गेट हियर सोलह आठ फोर एंड वन। तो हम यहाँ पे क्या करें, शॉर्टकट मेथड में ये जो डेटा आ रहा है इसको हम इसके जो भी हमारे पास डेसिमल है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम टू के मल्टीपल में डेटा को ले रहे हैं। तो देखो अब हियर अबाउट टू सी कि व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट, सी हियर when we are going to convert the data we are getting and starting from the 2 के power 0, same like that 2 के power 0, it means any power 0 we are getting the 1, so for the 1 we are getting 2 के power 0, it means the 0 position, this is the 0 position। what about the 4, 4 it means अगर हम 2 के टेबल में जाते हो तो पहले तो स्टार्ट होगा 0, देन 2 के पावर 1 एंड 2 के पावर 2, सो दिस इज 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, ये आपका 2 के पावर 2 है, ये 2 के पावर 3 है, और ये 2 के पावर 4 है। तो देखो हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, अगर आप यहाँ पे जाओगे ऑन द टॉप, हमारे पास डेटा डेटा था 16 8, वेट हियर, सी हियर, हमारे पास डेटा था 16 8 4 एंड 1, तो इसको हमने क्या किया 2 के पावर 0। अब देखो यहाँ पे 4 है तो 2 का पावर 2 है, लेकिन 2 का पावर 1 तो मिस हो रहा है ना, फिर यह 2 का पावर 3 है और 2 का पावर 4 है, इसको हम 2 के पावर में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हमने 1 को यूज किया है, 4 को किया, 8 को किया और 16 को किया, तो जिस डेटा को हम यूज कर रहे हैं उसके जगह पे हम क्या लिख देंगे 1। ठीक, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब ये देखो इस डेटा को हमने यूज नहीं किया, दैट्स व्हाई इसको हम जीरो कर देंगे, यहाँ पे 1 हो गया, ये 1 है, तो देखो यहाँ पे 1 1 1 0 1 एज वी आर गेटिंग हियर जो हमने फाइंड किया था। तो दिस इज द सिंपल मेथड एज वी आर गोइंग टू लर्न। तो हमारे पास 29 डेटा था डेसिमल, तो इसको शॉर्टकट के लिए अभी मैं अगेन इसको रिपीट करता हूँ, 29 को 2 के टेबल में जाओ, इफ यू आर एबल टू गेट डेटा देन ओके फॉर दैट, अगर नहीं आ रहा तो उसके नियर अबाउट चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पे दो दूनी चार दूनी 16 आ रहा है, 16 को अगेन 2 से करो तो 16 दूनी 32, तो उसको हम स्किप करेंगे, उससे प्रीवियस वाला लेंगे। तो 16 मतलब कि 2 के पावर 4, अब 2 के पावर 4 मतलब 16 आ गया। अब यह 16 में और क्या ऐड करोगे, सो वी आर गेटिंग द 8 प्लस 4 प्लस 1, ऑलवेज वी आर गेटिंग द 2 के पावर, 2 के पावर मतलब 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, दैट्स व्हाई 1 वी आर गोइंग टू गेट, 4 मतलब 2 के पावर 2 होता है, ये 2 के पावर 4 होता है, और ये 2 के पावर 3 होता है। तो देखो हमें सीक्वेंस में जाना है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 2 के पावर 0, तो यहाँ पे 2 के पावर 1 मिस हो रहा है आपका, तो इसको भी यहाँ फुलफिल कर देंगे। अब हम कौन कौन से डेटा को यूज कर रहे हैं, तो 2 के पावर 0 को यूज किया यहाँ पे 29 बनाने में, तो इसका जगह पे 1 आ जाएगा, इसको हमने यूज नहीं किया, दैट्स व्हाई यहाँ पे 0 का 0 इस प्लेस पे, 2 का पावर 4 यूज किया तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, आफ्टर दैट वी आर गेटिंग दिस इज द बाइनरी नंबर, दिस इज द राइट आंसर। गॉट इट।
सेम सपोज दैट सेम यहाँ पे नंबर दिया हुआ 11101। सपोज दैट मान लो ये बाइनरी है और बोल रहा है कि इसका डेसिमल क्या होगा, इसका डेसिमल क्या होगा। तो इसका शॉर्टकट क्या है, जो आपके पास डेटा है 11101, तो ये शॉर्टकट फॉर्म क्या होता है कि फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइक दैट। अगर यहाँ पे 1111 दिया हुआ है तो यहाँ पे करेंगे 1 गुना 2 के पावर 0 से स्टार्ट करें, फिर प्लस करते हैं तो इस 1 को लोगे 1 गुना 2 के पावर 1, 1 गुना 2 के पावर 2 एंड अगेन अगेन वी आर गोइंग टू एड द नंबर। तो बेटर है कि कितना भी पावर जाओ लास्ट में हम इस डिजिट्स को गुना कर रहे हैं उस पावर से। तो whenever we are going to multiply by the zero, so any of the number when we are going to multiply we are getting the zero, so that on the stick we are going to eliminate the zero position, because इसको हम क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे। नाउ वी आर काउंटिंग ओनली दिस नंबर। तो ये देखो ये फर्स्ट प्लेस है, दैट्स वाई 2 के पावर 0 वाला है, ऐड करेंगे। ये 1 प्लेस है, ये आपका सेकेंड वाला है तो 2 के पावर 2। ये आपका थर्ड वाला है 2 के पावर 3, ये 2 के पावर 4। सो 2 के पावर 4 8, ये और इसको ऐड कर लो तो 2 के पावर 4 मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 16, 2 के पावर 3 मतलब 8, 2 के पावर 2 मतलब 4 एंड एनी पावर 0 वी आर गेटिंग द 0, sorry 1। So when we are going to get, we are getting the 29. So this is the very simple. Here we are going to get the 29. I hope you are able to understand the conversation based on the binary to decimal as well the decimal to binary. So when we are going to use the magic concept, easily we are able to solve. ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लाइक वी आर गोइंग टू चेंज द पैटर्न। सपोज वी हैव द डेटा, हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ, इतना लंबा चौड़ा डेटा दिया हुआ है। दिस इज द फॉर्म ऑफ द बाइनरी। नाउ दे आर गोइंग टू आस्क द बेस्ड ऑन द हेक्साडेसिमल as well the octal concept. They are asking find the hexadecimal as well the octal number for given binary number. So how we are going to convert? तो see here, अगर हम बात करते हैं ये जो डेटा है इसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो चाहे ऑक्टल में कन्वर्ट करो, सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू गेट। तो यहाँ भी दोनों मेथड यूज करते हैं। अगर हम मेथड 1 की बात करते हैं मैनुअल मेथड, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये जो 1 दिया हुआ अगर हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 गुना 8 के पावर 0 प्लस फिर इसके बाद क्या है सेकेंड 1, 1 गुना 8 के पावर 1 प्लस 0 गुना, अब देखो ये कितना लंबा चौड़ा जाएगा। एट द लास्ट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एज वेल वी आर गोइंग टू एड द नंबर, उसके बाद जो नंबर आएगा दिस इज योर फाइनल आंसर। सो अज्यूम इट विल टेक लॉन्ग टाइम, बट व्हाट वी आर गोइंग टू से, अगर हमें एग्जाम देना अच्छे से, if you want to score more marks, if you want to solve the more question, that's why we are going to use the method number 2, it means magic concept। तो यहाँ पे मैजिक कंसेप्ट क्या करता है, सी हियर। यहाँ पे अगर मैजिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाओगे, सो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व, आई एम गोइंग टू यूज, सी हियर, पेन लेते हैं और थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो आ जाए यहाँ पे, अगर हम मेथड 2 की बात करते हैं, सो देखो सेम कंसेप्ट हम यूज कर, अब देखो हमने लास्ट क्लास में बताया था ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्टल का, सो ऑक्टल इट मीन्स 2 के पावर में कितना करोगे कि वी आर गेटिंग द 8 3। व्हाट अबाउट द हेक्साडेसिमल, इट मीन 2 के पावर 4। So whenever we are going to find, yeah, when we are going to convert the binary number to octal conversation, so from the left here we are going to make the 3 by 3 pairs, एंड हियर मान जाए यहाँ पर 2 ही है तो डोंट वरी अबाउट दिस, स्किप, या आप आगे 0 भी लगा के इसको 3 by 3 पेयर कर सकते हो। समझ में आ रहा, वेन भी कब ये 3 का पेयर होगा, जब अगर ऑक्टल दिया होगा, वाई क्योंकि 2 के पावर 3 वी आर गोइंग टू गेट द 8। अगर आपके पास हेक्साडेसिमल पूछेगा तो 2 के पावर 4, इट मीन्स यहाँ से लेफ्ट से आप 4 by 4 का पेयर बनाओगे। अब ये जो पेयर आ रहा है, यहाँ पे जो पेयर आया, यहाँ पे जो पेयर आया और यहाँ पे पेयर आया, इस पेयर को आप क्या करो डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। तो व्हाट गोइंग टू बी हियर, यहाँ पे 3 पेयर था तो देखो ये 2 के पावर 0, ये 2 के पावर 0 वाला पोजीशन है, 2 के पावर 1 है और 2 के पावर 2 है, तो यहाँ पे 0 से गुना करो तो वी आर गेटिंग द 0। सो दैट्स वाई, अब यहाँ पे देखो इसका वैल्यू डेसिमल वैल्यू क्या आएगा आपके पास, तो यहाँ पे देखो 1 1 और 0 है, तो यहाँ पे 2 के पावर 0 1 एंड यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आएगा 3, वी आर गेटिंग द 3। व्हाट अबाउट दिस वन, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ आपके पास 0 0 एंड 1,
तो देखो 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 1 है और 2 का पावर 2 है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे हमारे पास आएगा 4। व्हाट अबाउट हियर? यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो वी आर गेटिंग द 3 वंस, तो देयर इज शॉर्टकट व्हेन वी हैव द 1, तो इसका डेसिमल क्या आएगा 1। अगर हमारे पास डबल 1 है, सो वी आर गेटिंग द 3। अगर हमारे पास 3 1 है, सो वी आर गेटिंग द 7। अगर हमारे पास 4 1 है, तो वी आर गेटिंग द 15। जस्ट रिमेंबर द शॉर्टकट। तो यहाँ पर 3 1 था, दैट्स वाई वी आर गेटिंग द 7। व्हाट अबाउट हियर? जस्ट 1 1 है, तो 1 1 मतलब कि 1 एंड 2 मतलब कि 3। सो दिस इज द octal conversation. Very simple, we are going to get same numbers. What going to be here? मान जाओ कि हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1। ये आपके पास नंबर दिया हुआ, जस्ट अ वेट। ये नंबर दिया हुआ, अब पूछिए, दिस इज द बाइनरी नंबर, दे आर आस्किंग व्हाट इज द हेक्साडेसिमल कन्वर्सेशन। तो यू नो 16 इज इक्वल टू 2 के पावर 4, तो वी आर गोइंग टू मेक द पावर ऑफ 4 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। So what going to be here exactly? We are making the 4 by 4 पेयर। फिर यहाँ पे देखो 4 by 4 पेयर, यहाँ पे कुछ दो ही है तो छोड़ दो, चाहे आगे उसको 2 जीरो लगा दो, देन 4 by 4 पेयर भी अकाउंटिंग। अब यहाँ पे 1 by 1 इसका डेसिमल फाइंड कर लो। तो देखो, अभी हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास कंटिन्यूसली 4 1 है, तो वी आर गेटिंग द 15। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये फर्स्ट में ही 1 है, बाकी सब 0 0 0 0 गुना एनीथिंग, वी आर गेटिंग द 0, तो दैट्स वाई फर्स्ट का 1 हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, 2 का पावर 0 मतलब कि 1 ही आएगा। व्हाट अबाउट हियर गाइस? यहाँ पे 1 एंड 0, तो इसका क्या होगा, 0 गुना 2 के पावर 0 प्लस 1 गुना 2 के पावर 1, इट मीन द 2। हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 1 एज वेल द 15, 2 1 एंड 15। दिस इज द हेक्साडेसिमल, बट दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ द हेक्साडेसिमल, एज वी लर्न कि इन जनरल वी हैव ओनली 10 डिजिट्स 0 to 9। तो हेक्साडेसिमल मतलब कि डेसिमल प्लस हेक्सा, तो 0 to 9 आपका कॉम्बिनेशन होता है, और नेक्स्ट क्या होता है, A to F, जहाँ पे ए बराबर क्या होते हैं आपके 10, बी बराबर क्या होते हैं 11, सी बराबर क्या होते हैं 12, डी बराबर क्या होते हैं 13, ई बराबर क्या होते हैं 14 एंड एफ बराबर क्या होते हैं 15। तो यहाँ पे क्या दिया 15, मतलब क्या आ जाएगा आपके पास एफ, एफ आ गया, देन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो दिस इज द हेक्साडेसिमल एंड दिस इज द राइट आंसर। वेरी सिंपल। Do you understand? When we have the number based on the binary, अगर उसको आपको ऑक्टल में करना है, तो from the left we are going to make the pair of 3 by 3, and अगर उसको हेक्साडेसिमल में करना हो, तो from the left we are going to make the pair of 4 by 4, 4 by 4। after making the pair easily आपको डेसिमल में कन्वर्ट कर देने हैं। सो जो डेटा आएगा, दिस इज योर राइट आंसर। गॉट इट? समवेयर यू आर गेटिंग द क्वेश्चन लाइक दैट, कि आपके पास मान लो कि यहाँ पे डेटा है, व्हाट डेटा वी आर गोइंग टू गेट, ये 2 है, ये 4 है, 6 है। दिस इज द फॉर्म ऑफ द what going to be here guys, this is the form of the octal. So what is the binary conversation? Somewhere you are going to get the 1 5 50. What going to be here, somewhere you are getting the data like that. See here कि 1 है, 14 है, 3 और 2 है, तो दिस इज द फॉर्म द हेक्साडेसिमल। व्हाट इज द बाइनरी फॉर्म? तो देखो सिंपल है, सेम रूल्स वी आर गोइंग टू अप्लाई। जैसे हमारे पास बाइनरी था, तो उसको हम 4 बाई 4 का पेयर बनाते थे, अगर हम उसको हेक्सा में कन्वर्ट करने जा रहे थे। सेम अगर बाइनरी नंबर था, अगर उसको ऑक्टल में करते थे, तो हम 3 बाई 3 का पेयर बनाते थे। तो सेम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ऑक्टल है इसको बाइनरी में करना है, ये जो डेटा है, यहाँ पे जो डेटा है और यहाँ पे जो डेटा है, इसको हम 3 बाई 3 बिट्स में कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी में। तो 6 का क्या आएगा, तो 6 का आएगा 4 इन 2, सो 2 कहाँ पे आएगा, सो एग्जैक्टली व्हाट गोइंग टू बी हियर, अगर हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, 6 बराबर हो जाएगा आपके पास, 6 बराबर, देखो यहाँ पे, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं हियर, व्हाट गोइंग टू बी हियर, 6 बराबर हो जाएगा 2, तो 0 1 एंड 1,
सेम है, 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 0 0 1। ठीक है, सेम क्या है, 2 है तो 2 का मतलब क्या होगा, 0 है और 1 है और 0 है। अब देखो हमें क्या करना है, इसको बाइनरी फॉर्म लिखना, तो हम पहले कौन आया, तो पहले आ रहा है 6, तो 6 का कोड क्या है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 0 1 1। फिर आपके पास 4 का कोड क्या है, तो 1 0 0, एंड 2 का कोड क्या है, तो 0 1 0। दिस इज योर बाइनरी कन्वर्शन, दैट इज सिंपल क्वेश्चन। सेम अगर आपके पास हेक्साडेसिमल है तो इसको क्या करेंगे, 2 को 4 बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, 3 को 4 बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, एंड 14 है तो 14 को 4 बिट्स में कन्वर्ट कर दोगे। उसके बाद जो बाइनरी आएगा दिस योर आइडल। 2 है तो 2 को क्या होगा, 0 1 0 देन 0। 3 है तो 3 के लिए क्या चाहिए, 2 एंड 1 चाहिए, तो 1 हो गया, 1 हो गया, 0 एंड 0। 14 है तो 1 2 3 4, दिस इज योर बाइनरी नंबर। दिस इज वेरी सिंपल। So understand, when we have the data and we are going to convert in binary to hexadecimal and octal to like binary as well hexadecimal to this form. So this is the funda. Somewhere you are getting the question 1 1 0 0 1. This is the binary and they are asking the based on the fifth format. So what going to be here? So this is the very simple 1 गुना 5 के पावर 0 प्लस 0 गुना 5 के पावर 1, सेम रूल्स भी are going to apply, 0 गुना 5 के पावर 2 because this they are asking based on the 5, फिर 1 गुना 5 के पावर 3 प्लस 1 गुना 5 के पावर 4। सो 1 वी आर गोइंग टू गेट द डेटा, इसको ऐड करके दिस इज योर फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो किसी तरह का भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो, जस्ट उसके पावर को हम वहाँ पे क्या करते जाएंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एंड मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी बिट्स, आफ्टर एडिंग वी आर गेटिंग द फाइनल आंसर। Okay, I hope you understand the concept. Now what going to be here? Now we are going to solve some question जो क्वेश्चन ऑलरेडी आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। Got it? तो लेट्स सी हियर। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ, दिस इज द वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन की बात करें तो ये अक्टूबर 2022 के पेपरों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क, ऑन द बेसिस ऑफ 3 नंबर ए टू सी इन द डेसिमल, यहाँ पे सारे डेसिमल है, ऑक्टल and hexadecimal notation respectively, what are the equivalent to 110 11001 in the binary notation। तो यहाँ पे 3 डेटा दिए हुए हैं, इसको पूछ रहा है कि ये तीनों में कौन है जो इस बाइनरी नंबर के बराबर है। तो ऑलरेडी वी नो अबाउट द डेटा, तो यहाँ पे देखो ये डेसिमल है, तो डेसिमल है 217 है, देखो 217 है तो पहले हम इस सिंपल मेथड क्या होगा, ये जो डेटा दिया हुआ आपके पास 1 1 0 1 1 0 0 1, इस बाइनरी नंबर को हम क्या करते हैं, पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा क्या 217 उसका रिजल्ट है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 भी आपका होगा। यहाँ पे मल्टीपल MSQ है, मल्टीपल क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे बट यू आर गोइंग टू चूज वन ऑप्शन। तो देखो हमने क्या बताया था शॉर्टकट मेथड कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम द दैट। तो ये इसको आप सिंपल काउंटिंग कैसे करोगे, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 2 के पावर 0 से स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे ये 0 वाला फॉर्म होगा, ये 1 वाला होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 और 7 होगा। तो देखो जहां जहां 0 है, क्योंकि एट द लास्ट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय द 0, तो इसको भी इरेज और इसको भी इरेज, जस्ट 1 वाला नंबर को हम पिक करेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो 2 के पावर 0 मतलब कि 1 प्लस यहाँ पे आएंगे, ये 0 है, 2 0 है लगता, तो ये इसको स्किप करेंगे, इसको आते हैं 2 के पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 के पावर 4, 2 दूनी 8 दूनी 16 प्लस ये 0 खत्म हो गया, 5 गया 6 आया, तो 2 दूनी 4 दूनी 16 32 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 दूनी 64 दूनी 128। तो क्या है 217 है। नाउ वी आर गोइंग टू सी 8 4 12 6 18 और 8 और 16 एंड 27, इट मीन्स 7 वी आर गेटिंग। व्हाट अबाउट हियर 6 7 8 9, I hope we are not able to get the data. Again, just 8 from that, 8 1 9, 6 15, 4 19, 20 27, carry 2, 2 1 3, 6 3 9, 10 11 का 1 we are getting here. So I hope we are getting the data. तो 1 आ गया, carry 2, 2 1 3. So are going to be here. Clear है? यहाँ पे 217 आ गया. It means this is the right answer. This is the right answer. Next we are going to check. तो 6 है
6 और 1 है, ये दिया हुआ ऑक्टल। देखो अभी हमने रूल्स बताया तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये ऑक्टल है, इसको बाइनरी में पूछ रहा है, तो 1 को आप 3 बिट्स में कन्वर्ट कर दो। तो 1 0 0, देन 6 मतलब 4 एंड 2, तो 0 1 1 एंड 0 1 1। तो लेट्स सी हियर 1 1 0 1 1 0, देन 1 1, और यहाँ पे क्या है कि 0 0 1 है, सो वी आर नॉट एबल टू गेट द डेटा। सो ये भी नहीं होगा। व्हाट अबाउट द डी, इसको देखते हैं। डी दिया है और ये 9 दिया हुआ, दिस इज द बेस ऑन द 16, इसका बाइनरी क्या हुआ? तो यहाँ पे 9 को 4 बिट्स में कर दो, डी डी का वैल्यू क्या होता है? तो ए बी सी डी है, उसके बाद ई एफ। तो ए का होता है 10, बी का होगा आपका 11, सी का होगा आपका 12 और डी का होगा 13। इट मीन्स हियर वी आर गेटिंग द 13, यहाँ पर 9 है, तो 9 मतलब कि 2 दूनी 4 दूनी 8 1 9, तो एक चाहिए 0 0 1। ये 13 है, तो 13 के लिए क्या चाहिए? 8 4 12 1 13, तो 1 चाहिए, 0 चाहिए, 1 चाहिए और 1 चाहिए, तो 8 4 12 1 13। तो देखो इसको अगर ऐड करोगे तो 1 1 0 1, यहाँ पे देखो 1 1 0 1, फिर 1 डबल 0 1, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो राइट। तो ए एंड सी आ रहा है, व्हाट गोइंग टू बी हियर? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। दिस इज द वेरी सिंपल, वेर वी आर गोइंग टू गेट द 2 मार्क्स। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो आपको सिंपली उसको कन्वर्ट करना है कि ये डेटा जो दिया हुआ इसके बेस में आ रहा है कि नहीं। इफ यू आर एबल टू गेट, यू आर एबल टू सॉल्व। तो देखो हमारे पास ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 4, सो यू आर गेटिंग द 2 मार्क्स फॉर द क्वेश्चन। गॉट इट? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So there is another question, and this question asked in the recent exam like 2024 अगस्त में पूछा हुआ है। यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, एंड आई होप दिस क्वेश्चन आस्क इन द पेपर 2। पेपर 2 जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स है, जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, उनके पेपर में पूछा हुआ था, और ये पेपर 1 में भी पूछा हुआ। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, दैट्स व्हाई somewhere we are getting the very easy question. So let's see how we are going to solve. First understand the concept. So consider the given number 45 base of the y, where y is the base of the number. What going to be here? Y is the base of the numbers. तो sum of the possible value of y are given below. अब आपको बताना है ये जो 45, जैसे कैसे होता है कि 0 1 1 1 1, तो ये कौन सा फॉर्म है? बाइनरी में, तो दैट्स बेस क्या होता, कितना होता है? 2 होता है। अगर यहाँ पर दे दिया 4 5 6 7, somewhere we are going to add the base, किसका बेस क्या होगा? तो we already know कि अगर बाइनरी होगा तो उसके अंदर डिजिट्स क्या होंगे? इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 0 गो टिल बेस -1। बेस 2 है तो 0 एंड 1 कॉम्बिनेशन होगा, तो समझो बाइनरी है तो उसका बेस 2 होगा। अगर ऑक्टल की बात करते हैं तो ऑक्टल में क्या होगा? तो 0 से लेके बेस कितना 8 होता है ऑक्टल का, तो 0 to 7 जाएगा, तो 0 to 7 के बीच में और कोई भी डेटा है, दिस इज द बेस ऑन द 7। क्लियर? तो इसे ही आपको आइडेंटिफाई करना। तो सी हियर, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 5, फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन क्या है कि बेस, अगर बोल सकते हैं कि किसी का बेस अगर 5 दिया हुआ है, इट मीन्स क्या होगा? उसके अंदर बिट्स क्या होगा? तो 0 1 2 3 एंड 4 होगा। सेम सेकेंड में क्या दिया हुआ? बेस यहाँ पे आपका सेकेंड में दिया हुआ बेस आपका 6 दिया हुआ, तो 6 के लिए बिट्स क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 होगा। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ? बेस आपका यहाँ पे 7 दिया हुआ। जस्ट वेट हियर, दिस इज अ वेरी सिंपल, देखना ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। तो देखो ये बेस 7 है, इट मीन 0 1 2 3 4 5 6, वही 6 बिकॉज इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 0 गो टिल बेस -1। नेक्स्ट में दिया हुआ 8 है, तो बेस अगर 8 दिया हुआ, अगर बेस आपका 8 दिया हुआ तो 0 1 2, डी ऑलरेडी नो ऑक्टल का 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आपको बताना है कि ये जो डेटा दिया हुआ 45, ये जो आपके पास 45 दिया हुआ, इसका यहाँ पे ई बराबर क्या होगा? बेस। तो देखो 4 एंड 5 किसके किसके अंदर अवेलेबल है? तो अगर आप देखेंगे, पहले हम देखते हैं बेस 5 में, तो बेस 5 में 4 तो है, क्या 5 है इसके अंदर? नहीं, दैट्स वाई ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट अबाउट दैट? 6 में आएगा ना 5, यस 0 to 5 जाएगा, तो इसमें अवेलेबल हो, 7 में भी आ जाएगा, 8 में। सो दैट बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट। सो वे वी आर गोइंग टू गेट द बी सी डी, सो यू आर एबल टू सी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दैट वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो कभी कभी आपको एग्जैक्ट इस तरह के डेटा पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व।
So what exactly ask? With reference or number system, which of the following statement true? Just we are going to find the true and false. तो देखो आपको सिंपल मैच करना है LHS बराबर RHS, मतलब कि ये जो डेटा दिया हुआ इस डेटा से मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 109 दिया हुआ, यहाँ पे बाइनरी दिया हुआ, तो बेटर हम बाइनरी को कन्वर्ट कर दे 1101 तो ये देखो कितना हो जाए 2 के पावर 0 का फॉर्म है, और ये 2 के पावर 1 है, 2 के पावर, ये 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 6 है। तो देखो जीरो वाला को हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वी आर गेटिंग द जीरो। तो एनी पावर 0 1 प्लस यहाँ पे 2 का पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 32 प्लस 32 दूनी 64। अब इसको ऐड कर दो, क्या 109 के बराबर आ रहा है। तो 8 2 10 1 11 और 4 15 के 5, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है और यहाँ पे 109 है, तो ये नहीं होगा। व्हाट अबाउट हियर? तो देखो यहाँ पे दिया हुआ 1 2 5, 1 2 एंड 3 दिया हुआ, इसका बेस है 5, क्या इक्विवेलेंट है 2 1 2 के 4 में। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 1 है 2 एंड 3 है। सो हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट? तो सी हियर 1 2 3 इज इक्वल टू 2 1 2। तो यहाँ पे क्या करोगे 2 गुना इसका बेस कितना है, इसका बेस है आपके पास 4, और इसका बेस कितना है, इसका बेस है आपके पास 5। तो ये क्या होगा यहाँ पे 2 गुना 4 के पावर 0 प्लस 1 गुना 4 के पावर 1 प्लस 2 गुना 4 के पावर 2, इसको गुना ऐड कर लो, देखो क्या है इक्वल है। 3 गुना 5, बेस क्या है 5, तो 5 के पावर 0, 2 गुना 5 के पावर 1 प्लस 1 गुना 5 के पावर 2, इसको भी गुना कर दो। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा, एनी पावर 0 0, तो 0 गुना 3, एनी पावर 0 1, 1 गुना 3 3 प्लस 5 एकम 5 और दूनी 10 प्लस 5 दूनी 5 25 गुना 1 25, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 25 10 35, देखो यहाँ पे 35 38 आ रहा। वॉट एवर क्या इक्वल बैलेंट है यहाँ पे देख लो। तो ये एनी पावर 0 1, 1 गुना 2, तो 2 प्लस 4 प्लस 4 चुके 16 दूनी 32, 32 4 36 37 38, देखो 38 इक्वल टू 38, इट मीन्स दिस इज द राइट आंसर, ये भी राइट है आपका। तो दे आर आस्किंग विच वन इज ट्रूथ, ऑलरेडी वी गेट इन द ऑप्शन नंबर 2। सेम ऐसे ही आपको इसको करनी और इसको करनी, तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना, ये भी 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस concept. So if you understand, please do share with your friend, colleague and all, so they can also get the benefit. Okay, so see you in the next session, next lecture. तब तक के लिए thank you, and please don't forget to subscribe the channel. So please share with your friends so they can also get the more lecture as well the video. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल द कंसेप्ट के साथ। टिल इट बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग विद CS विजन।